بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یودو چاہتا ہے احدو کوئی ایک کم تم میں سے ان یہ کہ تکونا ہو لا لیے ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک ایسا باغ من سے نخیل کھجوروں واو اور اعنابن انگوروں کا تجری بہتی ہوں من سے تحتی نیچے اس کے انہارو نہریں لہو اس کے لیے فی میں اس باغ میں من سے کلی ہر طرح کے الثمراتی پھلوں میں سے واو اور اصابہ پہنچے ہو اس آدمی کو الکبر بڑھاپا واو اور لا لیے ہو اس کے ولہو اور اس کی ذریتن اولاد ہو ضعفاء کمزور پس اصابہ پہنچے اس باغ کو اعصارن ایک بگولا فی میں ہی جس میں نارن آگ ہو فاحترقت پس وہ اسے جلا ڈالے یا وہ باغ جل جائے کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے واضح کرتا ہے اللہ تعالی لا لیے کم تمہارے لکم تمہارے لیے الآیاتی آیات کو لعل شاید کہ تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرنے لگ جاؤ ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل وعناب کیا تم میں سے کوئی ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک ایسا باغ ہو جو کھجوروں اور انگوروں سے بھرا ہوا ہو تجری من تحتها الانہار ایک ایسا باغ کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں لہو فیہا من کل الثمرات اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے اور پھل بھی ہوں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اس آدمی کو بڑھاپا آ پہنچے وہ بوڑھا ہو جائے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ جبکہ اس کی اولاد اس کے بچے ابھی چھوٹے اور کمزور ہوں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ پس اس باغ کو ایک ایسا بگولا پہنچ جائے اس باغ میں ایک ایسا آگ کا بگولا آ جائے جس کے اندر آگ ہو اور اس سے وہ سارا باغ جل جائے كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون اللہ اپنی آیات کو اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 ہے جس میں اگین اللہ رب العزت صدقہ خیرات کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فی سبیل اللہ خرچ کرنا اور نیکیاں کرنا لیکن ان کے اندر احسان نہ جتانا تکلیف نہ دینا اور ریاکاری کرنا ہے کہ کوئی کہ مثال کے ساتھ واضح فرما رہے ہیں سب سے پہلے میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی جو سنتے ہی آپ سوچیں گے کہ بہت ہی آپ کو افسوس ہوگا اس واقعے کے اوپر کہ کوئی ایک آدمی ہے اس نے اپنی ساری جوانی لگا کے اپنی ساری صحت اپنی طاقت لگا کے پیسہ لگا کے ایک باغ تیار کرتا ہے ایک کہانی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس نے ایک باغ تیار کیا بڑا خوبصورت پیارا باغ اور اتنا خوبصورت باغ کہ جس کے اندر سب سے زیادہ جو بینیفٹ فروٹ ہے جیسے کھجور ہو گئی ہر موسم میں ہوتا ہے ہر جگہ جو ہے نا اس کی افادیت طاقت کھانے کے لیے طاقت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے بیسٹ فروٹ ہے وہ بھی ہو اور انگور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بیلیں دکھنے میں بھی کتنی پیاری لگتی ہیں اور انگور ایک بہت اچھا جو ہے اور یہ دونوں انگور اور کھجوریں جو جنت کے باغات میں سے ہیں جنت کے پھلوں میں سے ہیں اور اس نے وہ تیار کی اور اس کے علاوہ بھی اس کے باغ میں اور بھی بہت خوبصورت ہر طرح کے پھل یوں سمجھ لی کہ اس میں ہر راحت ہر سکون اس باغ کے اندر ہے جب بھی کوئی باغ لگاتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے آبپاشی کا نظام اگر کسی باغ کو اچھے طریقے سے وقت میں پانی دیا جائے تو وہ صحیح پھیلتا پھولتا ہے وہ صحیح اناج اگاتا ہے تو یہ باغ ایسا ہے کہ پہلی بات تو اتنا خوبصورت باغ اس نے اتنی محنت سے تیار کیا اور اس میں اتنے خوبصورت یعنی کھجوریں اور انگور جیسے اور اس کے علاوہ ہر طرح کے اور پھل بھی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مالٹے آم سب کچھ اس کے اندر لگا ہوا ہے اور پھر پانی کا اس کے اتنا خوبصورت انتظام ہے کہ آبپاشی جیسے اللہ پاک
कभी जन्नत का मंजर सुनाते हैं कि फलां बंदा जन्नत में जाएगा तो ऐसे बागात होंगी जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। तो इस तरह का उसका बाग हो कि उस बाग के दरमियान से नदी गुजर रही हो और वहां पानी हर वक्त, यानी वो कुदरती पानी वहां से गुजर रहा हो, ना उसको ट्यूबवेल लगाने की जरूरत ना कुछ। अब आप सोचिए कि उस बाग में पानी भी खुद आ रहा है तो वो कितना फैलता फूलता होगा। बहुत फैल फूल गया। वो जवानी में बच्चों को खिला रहा है, खुद भी खा रहा है सब कुछ, लेकिन क्या हुआ, उसको बुढ़ापा आ गया। वो आदमी अब हो गया बूढ़ा और उसके बच्चे छोटे। ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी की शादी बहुत ज्यादा लेट हो जाए तो उसके जो है बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, जबकि उसकी अपनी एज जो है 70 अबव हो जाती है, 70 प्लस हो जाती है। तो ऐसा ही वो शख्स है कि खुद तो वो बहुत बूढ़ा हो गया, लेकिन जैसे कि अमूमन ये होता है कि कोई आदमी बूढ़ा होता है तो उसके बच्चे जवान होते हैं, लेकिन ये आदमी ऐसा था कि जिसका बच्चे भी जवान नहीं है, बच्चे भी बहुत छोटे से हैं। तो अचानक उसके बाग को आग लग जाए। ठीक है, वो सारा खूबसूरत बाग जो उसने बनाया था अपनी मेहनत, जिंदगी पूरी की जमा पूंजी लगा के, अब उसको आग जला दे। तो मेरी प्यारी बहनों, आपने सुन के आपको कितना अफसोस हुआ, कितना ज्यादा आपने गौर किया होगा कि अल्लाह जी उसका क्या बने अगर एक ऐसा शख्स है जिसने इतनी मेहनत से इतना प्यारा बाग लगाया, लेकिन अब जब उसको बाग की शदीद जरूरत थी कि अब उसको घर बैठे आराम का उसका वक्त आया था कि उसको फल फ्रूट वहां से आमदनी मिलती रहती है और वो घर बैठा रहता है, उसके बच्चे भी खाते पीते पढ़ाई करते, जब तक वो किसी काबिल होते तो उनके खाने पीने का रुज़ का इंतजाम हो जाता। लेकिन अब क्या हुआ कि आ गई और उसने वो बाग जला दिया। बहुत अफसोस की बात है ना, बहुत अफसोस हो रहा होगा आपको कि ऐसा कैसे हो गया, उस बेचारे का क्या बनेगा। अब तो बूढ़ा आदमी है, कमजोर है, ना वो दोबारा बाग लगा सकता है ना उसके बच्चे लगा सकते हैं। वो बाग तो जाया हो गया, जल के राख बन गया। अब बड़ा नुकसान हो गया, कैसे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, ये हमें रब करीम ने एक वाकया सुनाया, ये वाकया नहीं है, ये रब करीम एक मिसाल दे रहे हैं हमारी। ये जो वाकये का जो करेक्टर है जिसपे हमें बड़ा अफसोस हो रहा है, जिसपे हमें तरस आ रहा है, ये आप भी हो सकती हैं और मैं भी हो सकती हूँ। किस तरह कि अल्लाह पाक ये सिर्फ हमें एक मिसाल दे रहे हैं कि जो शख्स बहुत ज्यादा सदका खैरात करे, यहाँ पर सिर्फ सदका खैरात मुराद नहीं है, हर तरह की नेकियां हैं जो इंसान करता है, हर तरह के वो अच्छे काम जो इंसान करके रब करीम की रजा हासिल करना चाहता है, या वो उन कामों कर वो जो काम है वो रिलेट होते हैं आखिरत के साथ, रब करीम की रजा के साथ, ऐसे काम इंसान करता है और पूरी जिंदगी करता रहता है और बड़ी मुश्किलात से करता है। कोई भी काम आसान नहीं होता, ना नमाज बहुत ज्यादा आसान होती है हम जैसे लोगों के लिए, ना फिर रोजा रखना बहुत ज्यादा आसान होता है, ना हज और उम्रे के लिए पैसा लगाना और जान की मशक्कत वगैरह करना आसान होता है। और इसके अलावा सदका खैरात करना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। फिर ये कि जिक्र अज़कार जो इतना आसान था उसको भी शैतान ने हमारे लिए मुश्किल बना दिया। जो ही को जिक्र करने लग जाते हैं शैतान अपनी सोचें लेके आ जाता है, बंदा भी सोचने में लग जाता है, वो उधर ये हुआ था वो हुआ था, उधर उधर चले जाते हैं। जिक्र भी गोया कि अब आसान नहीं है हम जैसे लोगों के लिए। तो फिर इस सब के बावजूद एक इंसान कोशिश करता है, जिक्र अज़कार करता है, तस्बीहात पढ़ता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज भी कर लेता है, ज़कात भी दे देता है, उम्रा भी करता रहता है, सदका खैरात सबसे ज्यादा बढ़ के करता है। लेकिन क्या होता है, इतनी ढेर सारी उसके पास नेकियां जमा हो जाती हैं, एक खूबसूरत बाग उसके पास तैयार हो जाता है, लेकिन आखिर में क्या करता है, शैतान उसके दिमाग में डाल देता है, तुम तो बहुत ही सखी हो, तुम्हें तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, तुम बहुत नेक हो, तुम तो बहुत नमाजें पढ़ती हो, तुम तो इतनी तस्बीहात करती हो, तुम्हारी जैसा तो कोई और है ही नहीं। गुरूर आ जाए इंसान के अंदर, तकब्बुर आ जाए इंसान के अंदर, खुद पसंदी आ जाए इंसान के अंदर, थोड़ा सा इंसान इस तरफ सोचने लग जाए, हाँ मैं तो बिल्कुल जो है ना मुझ जैसा नेक और कोई है ही नहीं, खुद अपने आप जो है वो इंसान को क्या लगने लगे, बहुत खूबसूरत लगने लगे, बहुत प्यारा लगने लगे। और दूसरे सारे लगे ये तो बड़े गुनहगार हैं, इनका तो ना नाजरा आता है, ना तर्जुमा आता है, ना इनको जो है ना ये नमाज सही पढ़ते हैं, ना तस्बीह पढ़ रहे हैं, ये कैसे लोग हैं, ये पर्दा नहीं करते, ये शादियां कैसे करते हैं, ये दूसरों को हम मुर्द इल्जाम ठहराते रहे और खुद को बरी जिम्मा करार देते रहे, तो फिर क्या होगा मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह को किसी किस्म का भी तकब्बुर पसंद नहीं है। और फिर क्या, सबसे बड़ी बात जो हमने गुज़िश्ता आयात मुबारका के अंदर पढ़ी कि सदका खैरात करता रहा, लेकिन क्या किया, जिसको सदका दिया उसको कोई तकलीफ दे दी, कोई जुमला बोल दिया, कोई सख्त खास जुमला बोल दिया, उस पर एहसान जितला दिया, या उसके सामने या पीछे फिर लोगों को बता बता के मैंने इसको वो दिया था वो दिया था वो दिया था, हम इनको इतना करते हैं, हम इनको इतना देते हैं, एहसान
जितला दिया या उसको तकलीफ दे दी, या फिर क्या है कि कोई भी काम, ये सारे जो अमाल किए थे बता बता के लोगों को, ये इसलिए किए थे कि कोई लोग मुझे तारीफ करें, लोग मुझे नेक समझे, लोग मुझे अच्छा समझे, और उसके दिखावे की नीयत उसके अंदर आ गई थी। मेरी प्यारी बहनों, ये इतनी आसान बात नहीं है, ये हमें रब्बे करीम से ही मांगना पड़ेगा कि रब्बे करीम तू हमारी हिफाजत फरमा। कभी कभी हो जाता है हमें कोई अच्छे प्यारे मैसेज आए तो हम खुश हो जाते हैं कि रब्बे करीम ने कबूल कर लिया और हमारा जो तर्जुमा चल रहा है और लोग सुन रहे हैं और लोग खुश हो रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं अल्लाह, लेकिन खुद पसंदी ना आ जाए, या अल्लाह हमारे अंदर कोई तकब्बुर ना आ जाए, या अल्लाह कोई ऐसा आगा बगोला ना आ जाए जो हमारे अमाल और नेकियों को ज़ाया कर दे। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि ऐसा किया उसने तो उसकी सारी जिंदगी की रियासतें, सारी जिंदगी की मेहनतें क्या हो जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी। उसी शख्स की तरह जिसने एक बाग लगाया, ये कोई करेक्टर नहीं था, ये अल्लाह पाक मिसाल देने के एक बंदा पूरा बाग लगाता है और फिर क्या होता है, जिस उम्र के हिस्से में उसको सबसे ज्यादा बाग की जरूरत थी उसमें वो बाग जल गया और अब वो मजीद उसमें कुछ कर भी नहीं सकता। जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हाजिर होंगे नेकियों के अंबार लेके, नेकियों के, अच्छा एक और चीज आपने वो सुना होगा कि एक इंसान अगर नेकियों का बहुत बड़ा ढेर लेके आएगा, बहुत बड़ा ढेर लेके आएगा तो बड़ा खुश होगा, बड़ा मुतमईन होगा कि आज तो मेरी खलासी हो जाएगी, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अचानक कोई एक बंदा आके कहता है या अल्लाह इसने मेरी हिबत की थी, रब्बे करीम उसको जो है ना इसकी नेकियां उसको पकड़ाते जाते हैं, पकड़ाते, फिर कहते हैं या अल्लाह इसने मुझे मारा था, या अल्लाह इसने मुझे मेरी चोरी की थी, या अल्लाह इसने मेरे खिलाफ जो है ना प्रोपगंडा किया था, या अल्लाह इसने मुझे मुंह पे बुरा भला कहा था, इसने मुझे रुलाया था, या अल्लाह इसने जो है ना मेरी जो चीज ली थी वापस नहीं की थी, ये वो सबसे ज्यादा तो गीबत ना। ये करते करते अल्लाह वक्त देते जाएंगे उसकी नेकियां। अल्लाह कहेंगे ठीक है आज तो और कुछ नहीं है कि इसको यहाँ पे दुनिया अल्लाह के हाँ हुजूर सजा मिले, अब इस कुछ नहीं और लिया जा सकता, इसकी नेकियां जो आपको दी जाएंगी, इवन के उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन लोगों की वो जो लाइन है ना जिनको उसने तकलीफ दी थी वो खत्म नहीं हुई। अल्लाह पाक हमें माफ करे, माफी मांग ले, दिल से माफी मांग ले सबके साथ। हम सबको बहुत तकलीफें देते हैं, हम हर्ट करते हैं, कभी हमें पता ही नहीं होता हमने दूसरे को कितना हर्ट कर दिया, दूसरे का दिल इतना उदासी से भर जाता है हमारी जुमलों से, हमारे नुकीले जुमलों से, हमारी तानों से, हमारी तशने, इस तरह की बातों से दूसरा बंदा बिल्कुल बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो फील नहीं करवाता लेकिन वो परेशान हो जाता है। वो फिर वो लोग, अभी भी लोगों की लाइन तो खत्म नहीं हुई, सारे लोग जमा हो गए, फिर क्या होगा, फिर अल्लाह पाक कहेंगे अच्छा अभी भी तुम्हारा जो है ना हक पूरे नहीं हुए, फिर ऐसा करोगे जिनकी गिबत की है ना उनके गुनाह इस शख्स को दे दो, यहाँ तक कि वो जो जन्नत उसके ऊपर गोया कि वाजिब हो चुकी थी अब वो जहन्नुम की तरफ चला गया अपने उस बदजुबानी की वजह से, उस बुरे अखलाक की वजह से। तो मेरी प्यारी बहनों ये बात इस आयत मुबारक में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इस बूढ़े की तरह ना हो जाना। अब देखें वो बूढ़ा भी अपना अपना बाग नहीं ठीक कर सकता कुछ, और हम भी वहां पर अल्लाह के यहाँ जब चले जाएंगे तो हमारी तो जो ही सांस बंद होगी, जो ही हमें फरिश्ता मौत का नजर आएगा या सूरज जो मशरक से निकल जाएगा, क़यामत आ जाएगी, तो उसके बाद हम कोई अमल नहीं कर सकते। आज हमें सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना मुश्किल लग रहा है, वहां हम कहेंगे या अल्लाह दुनिया में दोबारा भेज दे। तो आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा इंसान जो है वो मरने के बाद जो दुनिया में जाने की तमन्ना करेगा वो इस वजह से करेगा कि अल्लाह मैं दुनिया में जाऊं और सदका करूं। इतना जब वो देखेगा कि दुनिया में सदका करने की फजीलत इतनी ज्यादा उसको देखेगा कि बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इतने फायदे, वो कहेगा काश मैं दुनिया में चला जाऊं और जाके मैं सदका करूं। ये हसरत करेगा जन्नती भी कि दुनिया में जाऊं और फिर मैं वहां जाके तो ये सदका कर लूं। तो अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि और फिर वहां जब हम चले जाएंगे वहां सब कुछ पता चले, फिर हम ना नेकियां कर सकते हैं। सांस उखड़ने के बाद हम कहेंगे आज हम तीर मार देंगे, बहुत जिक्र करेंगे, आज हम अल्लाह को राजी करके उठेंगे, अब हमने तहज्जुद नहीं छोड़नी, हमने इशराक चाश्ता रवाबीन पढ़नी है सब कुछ, लेकिन वहां पढ़नी ही नहीं है। वहां खत्म हो गया वो सिलसिला जो हमारी नेकियां हमने खुद कमानी थी। अब जो हो चुका वो हो चुका। जैसे वो बूढ़ा अपना घर और बाग ठीक नहीं कर सकता, इसी तरह ये इंसान जिसने सारी जिंदगी नेकियां की थी आज इसकी किसी गलत रवैये की वजह से वो नेकियां जाया हो गई हैं, तो अब इसको क्या होगा, ये मजीद कुछ और नेकियां कमाने के काबिल नहीं रहा। अब ये कोई नेकियां कमा नहीं सकता। मेरी प्यारी बहनों अल्लाह पाक हमें माफ करे, हमने गौर करना है। अब नेकियों से ज्यादा हमें इस बात की कोशिश करनी है कि हमारी जो टूटी फूटी नेकियां हैं ना, छोटी छोटी काविशें हैं, ये कबूल हो जाएं, कहीं ये हमारे लिए मजीद खसारे का सबब ना बन जाएं। बहुत ही अफसोस होगा आधी रात को अगर उठ के तहज्जुद पढ़ी लेकिन लोगों को बता दिया हम तहज्जुद पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, या फिर कुछ सोच के पढ़ ली,
صدقہ اتنے اپنے بچوں کے آگے سے رزق لے کے کسی کو دے دیا، لیکن بعد میں کیا دکھلاوا، وہ سارا کچھ. تو اللہ پاک ہمیں اس سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ ایسے ہی اب دیکھیں کتنا کھول کے اللہ نے ہمیں مثال دے کے کہا. اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ جو شخص بھی نیکیاں کرتا ہے اور پھر ان کو جو ہے نا اس کے بعد یہ گناہ کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اب اس کو آخر میں کچھ نہیں ملے گا. لیکن اللہ پاک نے خوبصورت مثال دی کہ نہیں، جس طرح بوڑھا ہو جائے انسان اور اس کے سارا کچھ ضائع ہو جائے، اس طرح یہ انسان بھی خسارے میں ہو جائے گا. تو اب اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کرو کہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر کے واضح کر کے کیسے آیات کو بیان کیا ہے. اللہ پاک یہ ہمیں غور و فکر کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تم اس دنیا کی آیات پہ اور قرآن کریم کی آیات پہ غور و فکر کرو، غور سے دیکھو، سنو اور سمجھو. تدبر کی دعوت دے رہے ہیں اللہ پاک. تو میری پیاری بہنوں، ہم سب نے خود سے سمجھنا آیات کو. میں کچھ نہیں سمجھا پا رہی ہوں، آپ میں سے ہر بہن پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، ایک تفسیر ضرور اچھی خوبصورت تفسیر جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو مفسر اچھا لکھتے تھے، انہی کی تفسیر لے کے مطالعہ کرنا شروع کر دیں. نہیں تو یوٹیوب پہ جن کو آپ پسند کرتے ہیں ان کا لیکچر لے کے یہی والی آیت مبارکہ، یہاں ایک بہن ہے ہر آیت کو سنتی ہیں، پھر اس کا کوئی کسی کا بیان سن کے وہاں پہ اسٹیٹس پہ لگاتی ہیں. تو آپ بھی ایسا کریں کہ کسی کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک تفسیر کر رہا ہے، اس کا بھی ساتھ سنیں، خود بھی تدبر کریں، جو آیت آئے اس کے اوپر غور و فکر کریں اکیلے میں بیٹھ کے کہ چلو یہ اس نے یہ سمجھایا ہے تو ہمیں کیا سمجھ آئی ہے. ہم نے ترجمہ یاد بھی کر لیا، ہم نے دہرا بھی لیا، ہمیں اس آیت سے ہم ہر ایک کا اپنا ذہن ہے. آپ ہو سکتا ہے مجھ سے بہت ہی ویلڈ اور بہت پیارے پیارے سینٹینس ذہن میں سوچیں اور آپ کے ذہن کی راہیں کھل جائیں اور مزید اور خوبصورت طریقے سے آپ عمل کرنا شروع ہو جائیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. باقی پھر اللہ پاک کا کام ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.